बीसीसीआई ने टीम का ऐलान कर दिया इंग्लैंड दौरे के लिए और प्रेस कॉन्फ्रेंस अजीत अगरकर कर रहे हैं। शुभमन गिल को भारतीय टीम का कप्तान बनाया गया है। Over the course of the last year or two with him, there's no doubt it is going to be as tough as it gets. Doing a five-match series in England, and maybe he'll have to learn on the job a little bit. But we are very confident with what he has to offer, and that's the reason we've picked him. Ajit, was this the toughest selection committee for you ever since you took over as the chairman of selectors, considering the fact two of the legends had just retired? And did you expect that, or how was that retirement and that the kind of void they are leaving? Was it so difficult to think about future and all that? Could you just elaborate on that? Yeah, I mean, it's when guys like that retire, it's always going to be big holes to fill. I mean, Ashwin retired a few months back as well, so those three guys are stalwarts of our cricket. It's always difficult. One way of looking at it is it's an opportunity for someone else. They've left a legacy behind. I mean, obviously I've had conversations with both of them over the last couple of months. Virat obviously reached out early April and said he wants to finish. I mean, we've seen him, sort of give 200% every ball that he plays, even when he's not batting or he's in the field. He probably felt that he had given everything that he had, and if he can't keep up to the standards that he's set himself over the years and how good he's been, and maybe it was time for him. It's come from him. It's you've got to respect that. I mean, they've earned that respect, both of them, and and as all great players are, the one thing they are is they're true to themselves, and he was in that conversation. So you've got to respect that. I think we'll obviously miss. I mean, when you've got a guy who's played 123 test matches, 30 test hundreds, it's going to be tough to fill. It's an opportunity for someone else, but he's shown what needs to be done to succeed at this level. I mean, needless to say, even Rohit, he's been a leader over the last couple of years since he started leading the test matches. It's a new cycle, so it's an opportunity to build something for us as well. But there's no doubt. I mean, that's why I think we've got to show them the respect that they've earned instead of speculating too many things. It's sometimes a personal call with players, and you've got to respect that. And like I said, their performances over the years have shown the amount of games that they've won for India. It's someone else's chance now, but there's no doubt we'll miss them. I mean, all three of them, and Shami really. He's again in Test cricket. He's been incredible. So 4 guys like that not being part of your squad is going to make it a little bit tougher, but it's an opportunity for other guys. Hi, Ajit. What's the status of Bumrah? Is he fit for all the 5? What's the status of Bumrah? Is he available for all the 5 games, or what's the work transfer going forward? I don't think he'll be available for all 5 tests. As far as, again, the physios and the doctors have told us, whether it's 4 or 3, I think we'll see how the series goes and how his body can take the workload. Needless to say, how important he is. So even if he's fit for whether it's 3 or 4 tests, I think he's going to win us a few test matches. Yeah. So we're just glad that he's fit, and that little setback that he had in Australia wasn't too bad, and he's back playing. We've seen, I know it's T20 cricket at the moment, but we've seen what he's doing in the IPL. So we're just happy that he's part of the squad. Thanks for elaborating on the Korea and Rohit bit and putting an end to all the activities. When in regards to the Tarun and the squad, how challenging was it to actually overlook someone like, or prefer Tarun over someone like Sarkar, who was around but didn't get an opportunity in Australia? What sort of a signal does it send to the larger pool of players in the country? Yeah, I mean, sometimes you just have to make those decisions. I mean, Sarfaraz did play the 3 test matches in India. I know he got 100 in the first test, didn't get runs, missed out in Australia. Sometimes those are decisions which the team management takes.
whether it's fair on somebody or unfair on someone, those are the choices that you make in the best interest of the team. And at the moment we felt, Karun obviously he's put heaps of runs over the last couple of seasons. He's played a little bit of test cricket early in his career. Has played a bit of county cricket. We feel that he's batting well enough. Also with now Virat not there, clearly lacking a little bit of experience in that batting. Jaiswal touring for the first time to UK. I know Gill's played one test match. So it's basically KL and Pant who've played a series before. So we felt his experience could help. Sometimes it is always going to be unfair on somebody else, but eventually you've got to make choices. You do have two senior players in the squad, three senior players. You have KL Rahul, Bumrah, Ravindra Jadeja. Were there any conversations, especially with Rahul as well as Bumrah, considering they have captained India in test matches before? And what are the conversations? I mean, not really. Booms because he led in Australia. He was the vice captain of Australia, but. तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें कि इंग्लैंड के दौरे पर जाने वाली भारतीय क्रिकेट टीम का ऐलान कर दिया गया है। शुभमन गिल को कैप्टन बनाया गया है, ऋषभ पंत को वाइस कैप्टन बनाया गया है और जो टीम 18 सदस्यों की जो टीम की घोषणा हुई है उस टीम में शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल भी शामिल हैं और पूरी टीम जो है वो हम आपको बता दें। शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, साई सुदर्शन, ऋषभ पंत, नीतीश रेड्डी, रविंद्र जडेजा, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, कुलदीप यादव, ध्रुव जुरेल, वॉशिंगटन सुंदर, करुण नायर, शार्दुल ठाकुर, आकाशदीप, अभिमन्यु ईश्वरन और अर्शदीप सिंह शामिल हैं। अजीत प्रताप सिंह हमारे सहयोगी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अब इस टीम का ऐलान कर दिया गया है। विराट कोहली और रोहित शर्मा के संन्यास के बाद अब लग रहा था कि किसको जिम्मेदारी दी जाएगी और इससे उनकी जगह को कैसे भरा जाएगा। इस टीम का जो ऐलान हुआ है कप्तान, उपकप्तान और पूरी टीम का, उसका आप किस तरह से विश्लेषण कर रहे हैं अजीत प्रताप जी? देखिए आनंद, ये एक नए युग की शुरुआत है भारतीय क्रिकेट में और चूंकि हमने देखा कि सीनियर प्लेयर ज्यादातर संन्यास ले चुके हैं, खास करके विराट कोहली और रोहित शर्मा, जिनका की करीब 17-18 सालों से भारतीय क्रिकेट में दबदबा था और पूरी दुनिया में उनका जो है, उनके जैसे प्लेयर पूरा जो है हर टीम उनसे डरती थी। तो वो जो वक्त है वो युग एक खत्म हुआ है और एक नए युग की शुरुआत हुई है। अजीत प्रताप सिंह हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं और ये बता रहे हैं कि ये जो टीम है, जिस टीम की घोषणा की गई है वो एक नए युग की टीम है और अब बीसीसीआई या यूं कहें कि भारतीय क्रिकेट अब एक नए दौर में प्रवेश कर रहा है, जब सीनियर प्लेयर इस टीम में जो दो बड़े सीनियर प्लेयर थे जिनसे दुनिया की दूसरी टीमें डरती थीं जब वो क्रीज पर होते थे, तो रोहित शर्मा और विराट कोहली, तो अब उन लोगों ने संन्यास ले लिया है और इस दौर में जो नई टीम बनी है उस टीम पर अब एक बड़ी जिम्मेदारी भी है। इंग्लैंड के टूर के दौरान भारतीय क्रिकेट टीम में शुभमन गिल के नेतृत्व में। अजीत प्रताप जी। हाँ बिल्कुल, देखिए आनंद, मैंने पहले ही कहा कि एक नए युग की शुरुआत है। रोहित शर्मा बहुत दिनों से कप्तान थे, कई सालों से, और उसके पहले विराट कोहली थे। विराट कोहली के पहले महेंद्र सिंह धोनी थे। तो वो सीनियर खिलाड़ियों की जो संन्यास हुआ है उसके बाद एक युवा टीम है। इसमें अगर पुराने प्लेयर्स में देखा जाए तो सिर्फ रविंद्र जडेजा एक पुराने प्लेयर्स हैं जो उन लोगों के साथ खेला करते थे, और जसप्रीत बुमराह थोड़ा सा सीनियर प्लेयर है। बाकी सब जो है नए खिलाड़ी है, युवा खिलाड़ी है, और ये खिलाड़ी भारतीय क्रिकेट को एक नए मुकाम पर ले जाएंगे। और हमने देखा है कि किस तरह से इसी साल जो है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो सीरीज थी वो काफी अच्छी नहीं थी भारतीय क्रिकेट खिलाड़ियों के लिए, टेस्ट खिलाड़ियों के लिए, और इसी के चलते विराट कोहली और रोहित शर्मा का संन्यास भी हुआ। लेकिन अब एक नई और युवा टीम है, नए कप्तान बनाए गए हैं शुभमन गिल। आप देख सकते हैं कि किस तरह से उनका दबदबा रहा। दुनिया के जो ज्यादातर टीमें कहती है कि सबसे ज्यादा टैलेंटेड प्लेयर अगर इस समय वर्ल्ड क्रिकेट में कोई है तो वो शुभमन गिल। धोनी की तरह मिस्टर कूल रहते हैं वो। हालांकि आईपीएल में हमने देखा कि कुछ एक मैचों में उन्होंने
अंपायर से कुछ कहासुनी भी हुई, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो शुभमन गिल नया भविष्य है भारतीय क्रिकेट का। और विकेट कीपर के तौर पर ऋषभ पंत को लिया गया है और उनको एक तरह से उप कप्तान की जिम्मेदारी दी गई है। पहले ये कयास लगाए जा रहे थे कि शायद जसप्रीत बुमराह को कप्तान बनाया जाए, क्योंकि वो सीनियर प्लेयर हैं और अपने गेंदबाजी को बेहतर तरीके से जानते हैं, कहाँ कब कैसा इस्तेमाल करना है। लेकिन जैसा कि अजीत अगरकर जो उन्होंने भी साफ किया कि हम जो है भविष्य को लेकर जो है हमने चुना है ये टीम और कप्तान शुभमन गिल, चूंकि लंबे समय तक खेल सकते हैं, अभी उनके पास जो है 10, 12, 15 साल का क्रिकेट उनके सामने है और इसी को ध्यान में रखते हुए शुभमन गिल को कप्तान बनाया गया है। सबसे अहम बात ये कि इंग्लैंड भी इस समय जो है सबसे दुनिया की वन ऑफ द बेस्ट टीम है और उससे सीरीज खेलना युवा खिलाड़ी हैं, तो इसलिए जो है एक तरह से बड़ा भरोसा इन नए प्लेयर्स के ऊपर जताया गया है। यशस्वी जायसवाल जो कि ओपनर रहेंगे, उनके साथ में केएल राहुल भी हैं, यानी जो रोहित शर्मा और विराट कोहली की जगह खाली हुई है उसको कहा जाए तो बहुत हद तक केएल राहुल और शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल, ये तीनों खिलाड़ी एक तरह से उनकी कमी को पूरा करने का प्रयास करेंगे, ऐसा भरोसा जताया है अजीत अगरकर ने और इसी हिसाब से ये टीम चुनी गई है। अब हमें देखना होगा कि इंग्लैंड में कैसा इनका प्रदर्शन रहता है, लेकिन मैंने पहले भी कहा आनंद कि एक युग का अंत हुआ है। अब एक चीज जरा ये बताइए कि इस टीम में जो हम अभी देख रहे हैं 18 सदस्यों की जो टीम है उसमें 3 विकेट कीपर हैं। एक तो ऋषभ पंत खुद हैं भी, दूसरे विकेट कीपर के तौर पर ध्रुव जुरेल को सामने रखा गया है और तीसरे विकेट कीपर के तौर पर अगर कहें तो केएल राहुल भी विकेट कीपिंग करते हैं। 3-3 विकेट कीपर हैं इस टीम में। बिल्कुल बिल्कुल आनंद, आपने देखा कि चैंपियंस ट्रॉफी पिछले साल जब हुई थी तो इंडिया उस टूर्नामेंट को जीती थी, तो वहां पर केएल राहुल ने विकेट कीपिंग भी की थी और लगभग हर मैच में अच्छा प्रदर्शन किया था। तो केएल राहुल हम आईपीएल में भी देख रहे हैं कि वो 1 डाउन भी आते हैं, वो उनको मिडिल में भी खिलाया गया, वो ओपनर के तौर पर, तो सभी फॉर्मेट में और सभी पोजीशंस पे उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। तो सबसे बड़ा रिप्लेसमेंट जरूर जो है ऋषभ पंत का अगर कोई है तो वो केएल राहुल है, लेकिन ध्रुव जुरेल का, चूंकि टीम जो है 18 सदस्यीय है न कि 14 या 15 सदस्यीय, तो ध्रुव जुरेल को भी एक रिप्लेसमेंट के तौर पर, विकेट कीपर के तौर पर उन्हें भी टीम में रखा गया है। और जहां तक फास्ट बॉलर और स्पिनर्स की बात करें तो फास्ट बॉलर्स में कमान जो है बाहर रखा गया है। बिल्कुल ये बड़ा अफसोसजनक है और चूंकि हाल ही में उन्हें थोड़ा फिटनेस प्रॉब्लम भी हुई थी और इसी के चलते आईपीएल में अपनी टीम के साथ वो नहीं खेल पा रहे हैं। आपने देखा होगा कि हैदराबाद के कई मैच मोहम्मद शामी पिछले 2, 3, 4 मैच से वो नहीं खेल रहे हैं, तो उनको थोड़ा सा फिटनेस प्रॉब्लम हुई थी। कल भी एक मैच था हैदराबाद का, तो जब हैदराबाद के कप्तान से पूछा गया मोहम्मद शामी के बारे में, तो पैट कमिंस ने यही कहा कि उन्हें थोड़ा सा फिटनेस में दिक्कत है और इस वजह से वो मैच नहीं खेल रहे हैं। और इसी फिटनेस के चलते हो सकता है कि उन्होंने पहले बीसीसीआई को इन्फॉर्म किया, सिलेक्शन कमेटी को इन्फॉर्म किया होगा, जिसके चलते वो टीम में नहीं है। फिटनेस अच्छी हो जाएगी तो हो सकता है वो आगे चलकर टीम के साथ जुड़ सकते हैं। जरा बॉलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बताइए, बॉलर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, सीमर्स हैं और स्पिनर्स हैं, इन लोगों का जो सिलेक्शन हुआ है। देखिए सीमर्स के तौर पर कमान जो है सबसे भरोसेमंद जसप्रीत बुमराह हो गए और उनके बाद प्रसिद्ध कृष्णा है, अर्शदीप सिंह है, मोहम्मद सिराज हैं, नीतीश रेड्डी भी आए हैं, वो भी बॉलिंग करते हैं, ऑलराउंडर हैं। तो ये जो फास्ट बॉलिंग कहें तो ये जिम्मेदारी इन 4-5 खिलाड़ियों के साथ होगी। जहां तक स्पिन की बात करते हैं तो स्पिन में कुलदीप यादव हैं, रविंद्र जडेजा चूंकि बहुत सीनियर प्लेयर हैं और वो अभी भी टीम में है, तो और वाशिंगटन सुंदर भी इस टीम में है। तो ये कुल मिलाकर स्पिन अटैक संभालेंगे। और बॉलर्स के तौर पर हमने बताया आपको बुमराह, अर्शदीप और प्रसिद्ध कृष्णा, सिराज, नीतीश रेड्डी। ठीक है, आपके पास आते हैं। हमारे साथ अभिषेक पांडे भी मुंबई से जुड़े हुए हैं। मुंबई में बीसीसीआई के ऑफिस में बैठक हुई और इस बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में टीम का अनाउंसमेंट हुआ और सबको इंतजार था कि कैप्टन कौन बनेगा। शुभमन गिल कैप्टन और वाइस कैप्टन ऋषभ पंत बनाए गए हैं। अभिषेक जरा बताइए, क्योंकि हलचल तो आज सुबह से ही थी और सब इंतजार कर रहे थे कि रोहित शर्मा और विराट कोहली के बाद
इंडियन टीम कैसी होगी, कौन कौन होंगे? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से रोहित शर्मा ने अनाउंसमेंट किया, संन्यास लेने की घोषणा की, और उसके पहले विराट कोहली का जिस तरीके से आया था, तो निश्चित तौर पर रिप्लेसमेंट तलाशा जा रहा था कि आखिर किसके ऊपर टीम इंडिया के कंधों की जिम्मेदारी दी जाए, उसके कंधों पर टीम इंडिया की, कि किस तरीके से आगे उसी तरीके से शानदार प्रदर्शन रहे टीम इंडिया का। तो ऐसे में सबका जो सेलेक्टर्स ने काफ़ी बैठक करी, करीब 1 घंटे के आसपास मीटिंग करी और कई लोगों से बातचीत की, जिसके बाद उन्होंने शुभमन गिल को ये जिम्मेदारी दी है। अब ये नया जो टीम इंडिया का एरा शुरू हो रहा है टेस्ट क्रिकेट में, वो शुभमन गिल की अगुवाई में शुरू हो रहा है। वो एक अच्छे बैट्समैन हैं और उन्हें ओपनिंग बैट्समैन के तौर पर मैक्सिमम लोगों ने देखा है किस तरीके से वो टीम इंडिया को संभाल कर चलते हैं, और समय समय पर चाहे वो स्पीड खेलना हो या स्लो पिच पर टिके रहना हो, दोनों चीज़ों में उन्होंने वो किया है। अब बीसीसीआई या भारतीय क्रिकेट जो है वो अब नए एरा में प्रवेश कर रहा है और इसकी जिम्मेदारी शुभमन गिल के पास है, और एक बड़ी जिम्मेदारी इस टीम को लेकर आगे बढ़ने की नए लोगों के साथ। बिल्कुल, शुभमन गिल के लिए एक नई चुनौती है। अब तक वो लगातार खेल रहे थे, लेकिन उनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं था। अब जो क्रिकेट होगा, अब उनके ऊपर एक प्रेशर होगा। अमूमन सचिन तेंदुलकर या उसके पहले से अगर आप देखते आइए, तो जब क्रिकेटर कप्तान नहीं होता है, तब उसको फ्री हैंड खेलने के लिए एकदम पूरा जज्बा होता है, लेकिन कई बार कैप्टन बनने के बाद उसके ऊपर दबाव काफ़ी ज़्यादा होता है। सचिन तेंदुलकर इसके सबसे बड़े उदाहरण रहे हैं, क्योंकि अपने कैप्टेंसी में काफ़ी दबाव में उन्होंने खेला, और जो पहले हिटिंग स्कोर्स मारते थे या जो उनका जो एक अनुभव रहा है, वो उनके शॉर्ट टर्म कैप्टेंसी में बहुत कम रहा। जब सौरव गांगुली और सचिन तेंदुलकर का एरा चल रहा था, तो उस समय में सचिन तेंदुलकर काफ़ी दबाव में नज़र आते थे। हालांकि उसके बाद से जैसे जैसे कैप्टन्स बदले, उन्होंने, धोनी ने कभी उतना दबाव महसूस नहीं किया, विराट कोहली ने नहीं किया, रोहित शर्मा ने नहीं किया। अब जब शुभमन गिल आए हैं, तो शुभमन गिल के ऊपर भी जिम्मेदारी 2 होगी। एक तो अपने खुद का बैट्समैन के तौर पर जिम्मेदारी संभालना, दूसरा पूरी टीम को संभालना, तो वो एक बड़ी जिम्मेदारी होगी। ऋषभ पंत हालांकि एक अच्छे और अनुभवी खिलाड़ी हैं, विकेट कीपर भी हैं, तो उन्हें वाइस कैप्टन बनाया गया है, तो निश्चित तौर पर एक बेहतर कोऑर्डिनेशन हो सकता है। हालांकि इसमें अगर पूरा देखा जाए, तो इसमें कई लोगों के जैसे करुण नायर हैं, करुण नायर काफ़ी दिनों से संघर्ष कर रहे थे, लेकिन उन्हें मौका मिल गया है और बैट्समैन के तौर पर मौका मिला है, ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। और साथ ही साथ 18 जो टीम है 18 लोगों की, उसमें अलग अलग तरीके के कई ऑप्शंस तलाके गए हैं, वेरिएशंस रखे गए हैं सेलेक्टर्स की तरफ से, ताकि जो टेस्ट मैच होने वाला टेस्ट मैच है इंग्लैंड के साथ, तो उसके लिए चाहे वो स्पिनर्स की हो, पेसर्स की हो, बैट्समैन्स हो, ऑलराउंडर्स हो, उन सभी का मिश्रण रखा गया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए।